yesterday we were discussing about the structuralism, right? That was our final topic. Structuralism, right? What is structural? We already studied about the structural functionalism, right? So whether it is structuralism or structural functionalism, what the main point which is similar to both, they both discuss about the relations. Right? Relations. Means in a culture, what is important? Relations, not the individuals. Relations are important, right? As we discussed in structural functionalism also, what Radcliffe Brown says, that interrelations maintaining is more important than individuals, right? Same is with this one. But what is different between those? That structural functionalism always talks about the society, right? Society, structure which is real in nature, what it is in society. Where structuralism talk about thoughts, it talks about thoughts, and this talk about structure in reality, means in society. So to structuralism, universal human thought, that is very important. And this human thought manifests in form of society, in form of culture. So mental thought or human thoughts or human mind, that is very important. So they believe in psychic unity of human mind, not mankind, human mind. That all human mind have a psychic, specific, unique thought. So why they form a specific culture. In that culture, due to binary opposition, they have varieties, right? Because human mind thinks in two binary opposition, as we discussed also, good and bad. I'm going to give a simple example, like shoes. When you go outside, you should wear the shoes. But when you're on dining table, you should not wear the shoes, right? So shoes are the same, but they are defined in two different ways, good and bad. It is obvious, चप्पल पहन के घूमो बट मंदिर में क्यों? Again, good and bad. So Levi-Strauss says that whatever culture you see, it is actually the manifestation of human thoughts. It is our mental structure which makes all these things, right? Like a creator creates the nature, right? Creator creates the nature जिसका आपने culture का, and we are the part of that one. So we all have a mental structure. That mental structure manifests in the social structure, and that social structure creates culture. तो अगर हम सिंपल देखें तो वो लोग ये कहते हैं कि this is the creator, right? Which creates its own culture, जिसको हम कहते हैं नेचर, बनाया उसने. उसके पार्ट कौन है? A human being, right? This human being have its own mental structure which manifest in terms of social structure. Whatever you think in mind, that is in your society, right? In binary form. Binary form कैसे? You and me, we and they, right and wrong, good and bad, hot and cold, right? Say though in this we make social structure. ये मेरे अपने हैं, ये दूसरे हैं, right? And finally this social structure forms a हाँ, ये structuralism का बेस है, which says that universal human mind, क्या बात कहते हैं वो? This shows mind,
या इसको आप कह सकते हो अ यूनिवर्सल ह्यूमन थॉट, राइट? सो व्हाट इज सोसाइटी? दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, राइट? मेंटल स्ट्रक्चर, लाइक आई एम गोइंग टू गिव अ सिंपल एग्जांपल, फोनेमिक्स। फोनेमिक्स क्या होता है? डिफरेंट साउंड्स। we all men, we all people, like we all human, we have a general base, a simple base of sounds. We create different sounds. On these different sounds language is based. लैंग्वेज किस पे बेस्ड है? उन साउंड्स पे जो हम क्लियर करते हैं, और वो हम सब लोगों की एक जैसी है। उसने लैंग्वेज का बेस बनाया। सो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? साइन ऑफ योर माइंड। पर थॉट तो एक ही है लैंग्वेज के पीछे। लैंग्वेज सबकी अगर बेसिकली मांगे तो सबकी लैंग्वेज है कि खाने के लिए खाना मांगते हैं, पर खाना मांगने का तरीका अलग हो गया, बट मांग तो खाना रहे ना। आपको जब जोर लगती है आप चिल्लाते हैं, मुझे लगता है पूरे दुनिया में भी चिल्लाते होंगे। दुख है तो सभी रोते होंगे, हंसते तो सभी हंसते होंगे, है ना? मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, बट हंसना, रोना, चिल्लाना, खाना, सोना, जागना, बुलाना सब एक जैसा है, बट यू आर यूजिंग द डिफरेंट टर्म्स। सो एक्चुअली योर थॉट यू एक्सप्रेस थ्रू अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है एक्चुअली? लैंग्वेज इज एक्चुअली साइंस ऑफ द माइंड। अगर मैं लैंग्वेज के बारे में करूं, लैंग्वेज क्या है? दे आर जनरली साइंस इन टर्म्स ऑफ कोड्स, जिसको हमने किसके थ्रू में यूज किया है? लैंग्वेज। साइंस क्या होता है? पीएच से क्या बोलता है? साइंस की डेफिनेशन क्या देता है? मैंने तो नाम भी बता दिया, पीएच। हाय हाय हाय, तो फोड़ के मारूंगा, क्लासिफिकेशन है वो। एनीथिंग विच कन्वेज अ मीनिंग, कुछ भी कह सकते हैं। एनीथिंग विच कन्वेज अ मीनिंग, एंड से 3 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है इंडेक्स, सेकंड होता है आइकन, एंड थर्ड इज सिंबल। इंडेक्स एसोसिएटिव रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू पीयर्स, राइट? इंडेक्स क्या है? एसोसिएटिव रिलेशनशिप। और आइकन्स क्या है? फिजिकल रिजेम्बलेंस, सचिन तेंदुलकर आइकन ऑफ द क्रिकेट। एंड सिंबल्स आर्बिट्रेरी मीनिंग। अब फिर ससुरे जी उठ के आते हैं लैंग्वेज में, देखें, नो, symbols have associated relationships, right? Because language use symbols. What is language? Symbols, right? तो उसने कहा नहीं, इनका मीनिंग है परफेक्ट, एसोसिएट मीनिंग है। तो वो कहता है कि द लैंग्वेज साइन इज अ लैंग्वेज। आर्बिट्री मतलब मनमाना, अपनी वजह से बनाओ। उसने कहा नहीं, ये आर्बिट्री नहीं है, ये एसोसिएटेड है। हर एक वोवल और साउंड का स्पेसिफिक मीनिंग होता है ना? दैट द सेम दे सी। सो लैंग्वेज एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म का जो बेस है ना, वो लैंग्वेज से लिया गया है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है। इसका बेस था ससुरे, फिलिपो ससुरे जो बेस था। तो ये फोनेमिक्स की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि कोई भी हर लाइक वी पीपल वी हैव अ जनरल बेस ऑफ साउंड, और साउंड के क्रिएशन से लैंग्वेज बना है। हर एक लैंग्वेज का ए बी सी डी ई एफ आ ई ऊ साइन, तुम्हारा स्पेसिफिक बेस से बोल रहे हो चीज, और हर एक का स्पेसिफिक मीनिंग है। तो उन्होंने कहा ये सब कहां से आए? थॉट। तुम्हारा जो थॉट है उसने अलग अलग चीजें निकाली, उसको तुमने सिंबल्स बनाए, एंड यू डेवलप ए लैंग्वेज। सेम चीज ये मेंटल स्ट्रक्चर जो है तुम्हारी सोसाइटी के साथ में है, राइट? हमारे माइंड ने जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, उसने एक सोशल स्ट्रक्चर सोचा, और सोशल स्ट्रक्चर का आगे कल्चर डेवलप हुआ। तो उसने कहा वास्तव में सोसाइटी क्या है? थॉट है। क्या है? थॉट है, एक मेंटल बेस है। तो ये कहता है, रेडली ब्राउन क्या कहता है कि मेंटल का सोसाइटी से कोई, उनके लिए सोसाइटी रियलिटी में है। वो कहता है नो, सोसाइटी इज नॉट रियलिटी। क्या रियलिटी है? थॉट। सिंबल्स थॉट ही था, क्या तुमने उसको मैनिफेस्ट किया कि ये भगवान है। अगर कोई आपको चीज मिल जाती है जिसपे गणेश जी ओम जैसा बना हुआ है, वो हनुमान है, वो कृष्ण है, वो राधा है, वो अपने महादेव जी है, वो गणेश जी है। डिफरेंट सिंबल्स वी हैव यूज्ड। स्वर्ण पादुका मिल जाए, रामदेव जी है। तो सिंबल्स वी क्रिएटेड, और सिंबल्स किससे क्रिएट किए हमने?
राइट। सो उसने कहा कि एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम माइंड, और माइंड हमेशा बाइनरी अपोजिशन देता है। तो हमने जो भी सोसाइटी में सोचा है वो बाइनरी अपोजिट के फॉर्म में सोचा है, सेक्रेड एंड प्रोफेन, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, राइट। तो उसने कहा ये सोसाइटी, यू एंड मी। सो इन सोसाइटी ऑल्सो वी हैव किन्स एंड नॉन किन्स, किन्स एंड नॉन किन्स। तो उसने कहा ये सब क्या, तो उसके लिए रियलिटी क्या थी, ह्यूमन थॉट। और ह्यूमन थॉट पर उसने कहा था साइकिक यूनिटी। उसने कहा ह्यूमन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर यहां बनाई है। सो वॉट एवर यू सी, ये जो स्ट्रक्चर है, द फर्स्ट इट इज मेंटल, देन द सोशल वन। तो ये लोग तीन जनरल चीजों पे बिलीव करते हैं, राइट। तीन जनरल चीजों बिलीव करते हैं। पहली बात ये कहते हैं पीपल फॉलो रूल्स। हाँ कर रहे हैं। एक कह रहे हैं सोसाइटी और स्ट्रक्चर और सॉलिडिटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा कहता नहीं साइकिक ह्यूमन थॉट इंपॉर्टेंट है, हाउ पीपल थिंक इज इंपॉर्टेंट। दूसरा कहता नहीं सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। क्या दोनों बात रिलेशन की रहे, क्या दोनों बात स्ट्रक्चर की बोल रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर। पर एक कहता है सोशल स्ट्रक्चर इन रियलिटी, कहता नहीं ह्यूमन थॉट इज इन रियलिटी, राइट। एंड विद पर्सपेक्टिव ह्यूमन थॉट वी हैव द पर्सपेक्टिव सोशल स्ट्रक्चर्स। क्लियर। तो पहली बात वो क्या कहते हैं, पीपल फॉलो रूल्स। स्ट्रक्चरिज्म का पहला बेस क्या कहता है, पीपल फॉलो रूल्स, वेदर इट इज मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, पीपल टेंड टू फॉलो रूल्स, वो रूल में रहते हैं। सेकंड बात क्या कहते हैं, हाँ मेंटेनिंग सोशल रिलेशन, और सोशल रिलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेसिप्रोसिटी, राइट। क्लियर। तीसरा बोलता है गिफ्ट एक्सचेंज द वे टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप, राइट। जो सोसाइटी में रिलेशंस को बनाए रखते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज। क्लियर। ये सिंपल रूल वो कहते हैं, पीपल फॉलो रूल्स, रेसिप्रोसिटी इज द सिंपलेस्ट वे टू मेक सोशल रिलेशनशिप, टू स्टार्ट सोशल रिलेशनशिप। रेसिप्रोसिटी मतलब समझते हैं, पढ़ा ना रेसिप्रोसिटी हमने, राइट, पढ़ा है ना। तीन तरह की होती है, जनरल, बैलेंस्ड एंड नेगेटिव, एंड गिफ्ट एक्सचेंज मेंटेन्स दीज रिलेशनशिप। यही तो बात, स्ट्रक्चर जब कहते स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, स्ट्रक्चर में को मेंटेन करना है ना। आपका थॉट स्ट्रक्चर सोसाइटी के स्ट्रक्चर बन चुकी है, इसको मेंटेन कैसे करोगे, पीपल फॉलो रूल्स। सो फर्स्ट यू नीड रूल्स, फिर पीपल फॉलो रूल्स। सेकंड रेसिप्रोसिटी, द होल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। एंड थर्ड गिफ्ट एक्सचेंज। अब वो कहता कि अब बिकॉज इट्स ए टोटली दीज आर द स्ट्रक्चरल फॉर्म का बेस बना। अब वो कहता है बात यह है कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द थॉट, ठीक है ना। और थॉट कैसे होते हैं, माइंड वर्क्स इन बाइनरी अपोजिशंस। आई माइंड वर्क्स इन बाइनरी अपोजिशंस, माइंड बाइनरी अपोजिशन काम कर रहा है। तो यही बाइनरी अपोजिशन यू विल फाइंड एवरीवेयर। जैसे binary opposition, people think we are in culture, it is nature, an interdependence between nature and culture, right. One nature, second culture, culture is created by man, nature is created by
God, creator. So nature and culture, there are two binary opposition, one by God, second by human. So nature and culture. Second, good and bad. Third, we and they. बाइनरी अपोजिशन सोसाइटी में के तुमको मिलेगा, पूरे यूनिवर्स में मिलेगा. व्हाई? बिकॉज माइंड थिंक इन बाइनरी अपोजिशन. सो वॉट एवर इन सोसाइटी टोटली इन बाइनरी सिस्टम, वो हमेशा एक का उल्टा सोचेगा. अगर तुम हो तो मैं हूं, हम है तो वो है, सही है तो गलत है, रॉ है तो कुक्ड है, किन्स है तो नॉन किन्स है ना. सो इट ऑलवेज लाइक दिस. क्लियर? एंड इट ट्राई टू रिलेट्स बोथ एट बोथ हेड. ये दोनों को रिलेट करने की हमेशा कोशिश करता है, गुड और बैड को. एक रिलेशन है गुड और बैड में, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है. एंड टू अपोजिट्स कम टुगेदर, टू अपोजिट्स कम टुगेदर. और उनके बीच में हमेशा एक रिलेशन चलता रहता है. गुड और बैड में देवता है, दानव है, एक से गणना करते हो, एक को साथ रखते हो, पर दोनों की कथा साथ में गाते हो. राम के साथ रावण गाते हो, कृष्ण के साथ कंस गाते हो ना. So they are, because they are the two facets of a coin. बाइनरी अपोजिशन के साथ होने चाहिए. इसी आधार पे इन्होंने हर एक चीज को समझाने की कोशिश की है. इन्होंने जो भी चीज समझाई है वो इस बेस पे समझे. जैसे लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. देखो इसको समझोगे कैसे. पहले क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज किनशिप. अ बुक रिटन बाय लेवी-स्ट्रॉस कॉल्ड एज elementary structure or elementary form of kinship. हाँ, क्योंकि माइंड वैसा ही सोचता है, और माइंड का मैन्युफैक्चर सोशल स्ट्रक्चर है. तो सोशल स्ट्रक्चर कल्चर क्रिएट करता है. तो उसने कहा जो भी चीजें आपको लिखती है वो हमेशा एक बाइनरी अपोजिशन के फॉर्म में होती है, जो आपको अच्छे से देखोगे तो दिखाई देते हैं. आप अपने घर में भी देख सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कल, अपने घर में कोई अपने मेहमान आते हैं, दूसरे मेहमान आते हैं, घर के लोग हैं, पड़ोसी है, तो आपका सीधा फर्क नजर आ जाएगा. किसको किस थाली में खिलाना है, किसमें नहीं खिलाना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कितना देना है. राइट. से ऑल इज देयर. सो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ किनशिप इसकी पहली बुक है. राइट. इन दिस बुक ही डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन किन्स. पहली बात तो यही कहेगा कि यू विल फाइंड अ स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन बिटवीन किन्स एंड नॉन किन्स. लाइक इनको आप क्या कहते हो, और ये कौन है, वी एंड दे. पहला फर्क तो यही हो गया. दूसरा सिस्टम ये कहता है कि इन किनशिप व्हाट हैपेंस टू रेडक्लिफ ब्राउन. किनशिप इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिसेंट थ्योरी. राइट. रेडक्लिफ ब्राउन जितने भी फंक्शनलिस्ट है, वो जितने भी ब्रिटिशर्स है, वो किस थ्योरी पे खड़े हैं. चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो मेयर फोर्टिस हो, चाहे वो इवांस प्रिचार्ड हो. हमने पढ़ा था ना स्ट्रिक्ट फंक्शनलिस्ट कौन है, रेडक्लिफ ब्राउन, मेयर फोर्टिस, इवांस प्रिचार्ड, रेमंड फर्थ. से दे ऑल ब्रिटिशर्स बिलीव इन डिसेंट थ्योरी. राइट. एंड डिसेंट थ्योरी क्या है, डिसेंट थ्योरी क्या है, ये क्या बताता है डिसेंट थ्योरी. इट इज अबाउट द किनशिप, अबाउट द ट्रांसमिशन. इट डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन. किस चीज का, प्रॉपर्टी, राइट्स, लैंड, ओनरशिप, राइट, पावर. So decision theory discuss about the transmission of property, rights, land, ownership, power, right? और ये किस सिस्टम में होता है? This system is called as linear system, right? So it may be from father, it may be from mother, from both single linear or बाइलिनियर सिस्टम और सिंगल लीनियर सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं, और सिंगल डिसेंट और डबल डिसेंट थ्योरी और बाइलिनियर कुछ भी कह सकते हैं. सो हियर लीनिएज और वंश जिसको बोलते हैं, लीनिएज वर्क एज ए कॉर्पोरेट ग्रुप, हैज प्रॉपर्टी, हैज पावर, अथॉरिटी एंड राइट्स. एंड दिस लीनिएज इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड लीनिएज मीन्स द किन्स,
और इस लीनिएज में मैरिज का क्या रोल है? इस लीनिएज में मैरिज का क्या रोल है? मैरिज इज सेकेंडरी। वंश बताया था ना, पहले तो बता चुका हूं किनसे थ्योरी व्हाट इज लीनिएज। वंश है जिसके पास सारी ग्रुप है, पावर है। एक लीनिएज का तो पावर है क्योंकि लीनिएज से जा रहा है एक से दूसरे में, तो लीनिएज इज वर्क लाइक ए कॉर्पोरेट ग्रुप जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, अपना ओनरशिप है, जिसको अपने थ्रू ट्रांसफर करता है, इधर पैट्री और मैट्री, राइट। तो मेरे सामने दो लीनिएज है, मान लो ये मैट्री है और ये पैट्री है, राइट। मैंने कहा मैट्री 0 है, पैट्री 1 है, राइट। बाइनरी लूं तो मैट्री 0 है, पैट्री, तो कितने इसके, अगर मैं मैथमेटिकल देखूं, लुक, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरल पीपल, लेवी-स्ट्रॉस, दे ऑलवेज बिलीव इन स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या करना है? एक अपोजिशन सिस्टम लेना है, राइट, फिर उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और फिर इनको ऑब्जर्व करना है और फिर उसका प्रैक्टिकल देखना है। तो हमने कहा कि एक लीनिएज है जिसमें मदर फादर 2 हो सकते हैं, तो मैंने मदर को क्या बताया 0, फादर को क्या बताया 1, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? बताओ कौन कौन से? M0 P1, दूसरा M1 P0, दूसरा M1 P1, चौथा M0 P0। बाइनरी तो 2 है, तो 2, जैसे आप दो सिग्नल भेजो, सिंगल तो नहीं है ना, आईटी है तो डबल ही। तो ये कौन है? ये कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा हो गया? ये कौन सा है? ये बाइलेटरल, वेरी गुड, बाइलेटरल 1 है क्योंकि दोनों तरफ से आ रहा है, कोई भी ले सकता है, मदर से भी ले सकता है, और बाइलेटरल तो मदर को उसको और फादर से उसको, दोनों साथ। और ये कौन सा है? आप चाहो जिसको लो, आप चाहो जिसको बनाओ, एमबी, तुम्हारी मर्जी है, तुम किस में भी जा सकते हो, मर्जी नहीं है ना उसमें, तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, दोनों दे रहे हैं, यहां तुम किसके पास भी जा सकते हो, राइट। कॉम्बिनेशन बता रहे, इसके हिसाब से 4 हुए ना, ये इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्लियर? देखो ये मैथमेटिक्स है, मुझे सिंपल बात बताओ, लेवी-स्ट्रॉस एक बात बोलता है, क्या मैथमेटिक्स रियलिटी है? रियलिटी है। अच्छा, ये तुमने कहीं देखा है क्या संसार में? मैथमेटिक्स तो सब कुछ, मैं, आप समझे नहीं, आपने माइंड में इमेजेस बनाई है, 2 एक वर्ड है, 2 + 2 4, क्या 2 कहीं है? एग्जिस्ट करता है वर्ड में? 3 एग्जिस्ट करता नहीं करता, हमने बनाया, ऑल मैथमेटिक्स इन ह्यूमन माइंड। तो ये कहता है सब कुछ ह्यूमन माइंड है, इसका मैनिफेस्टेशन सब्जेक्ट्स है, स्ट्रक्चर आर फॉर्म इन माइंड फर्स्ट, देन मैनिफेस्ट इन द रियल वर्ल्ड। यही तो मैंने आपको कहा, यही तो लेवी-स्ट्रॉस है, यही तो लेवी-स्ट्रॉस है। हाँ, उसने कहा कि देखो, आप जिसको पैट्रीमेट्री कहते हैं ना, मैं इसको मैथमेटिकली ऑब्जर्व करता हूं, एवरीथिंग इज इन माइंड, मैं तुमको मैथमेटिकली ऑब्जर्व करके बताता हूं, व्हाटएवर यू सी इट इज टोटली मैथमेटिकल। यही बात ये टोटेमिज्म पर कहेगा, टोटेमिज्म इज ए प्योर क्लासिफिकेशन, नथिंग एल्स। इट्स गुड टू थिंक, नॉट गुड टू, यस, बिकॉज जस्ट टू थिंक, राइट, जस्ट टू, भाई उसने कहा भाई नेचर कल्चर 2 अलग अलग वैरायटी है, टोटम कौन सा है? नेचर, तुम कौन हो? कल्चर, दोनों को मिलते तो टोटेमिज्म बनता है। नेचर में 2 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? नेचर में 2 चीज होती है, एक होता है कैटेगरी, एक होता है अपना क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर। और हमें कौन होता है? हमें एक होता है ग्रुप और एक होता है इंडिविजुअल। तो 4 कॉम्बिनेशन बना लो, कॉम्बिनेशन बनाओ ना 0 1 के, एक को 0 बनो, 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक हो जाएगा पर्टिकुलर ग्रुप, राइट, एक हो जाएगा इंडिविजुअल और ग्रुप, एक ग्रुप और इंडिविजुअल, एक ग्रुप पर्टिकुलर। अब ये 4 अलग अलग टाइप्स में पाए जाएंगे, उठा के देख लो। So it is totally mathematical because it is taught by. So first, what you need to do, observe properly. Then main mathematical calculations, observation, combination, permutation, and then generalize the theory. तो ये कहता है कि I do not believe in monogram.
मैं मोनोग्राम पे बिलीव नहीं करता कि किसी भी एक कल्चर में जाऊं और वहां का कुछ लिखूं। आई बिलीव इन यूनिवर्सल ह्यूमन थॉट, यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड। वो हर चीज को यूनिवर्सल करने की कोशिश करता है, इसलिए वो कभी भी किसी एक कल्चर को एग्जांपल नहीं लेता। ये बोरोरो जाता है, राइट, ये अरांडी जाता है, ये बुगांडी जाता है, और अलग अलग जगह जाके देखता है और एक ही चीज सिमिलर पाता है, ह्यूमन थॉट। उसके हिसाब से ग्रुप बने हुए। तो टोटेमिज्म हो चाहे मिथ हो चाहे किनशिप हो, और ये बात क्या करता है, जैसे ये तो मैंने सिंपल चीज बताई तुमको, किनशिप में ये बोलता है। दूसरी बात क्या बोलता है कि इन डिसेंट थ्योरी मैरिज इज टर्म्ड एज सेकेंडरी थिंग ओनली फॉर द प्रोक्रिएशन, प्रोक्रिएशन फॉर डिसेंस, खाली बच्चे पैदा करना उनके लिए। इसने कहा नो, इसने उल्टा किया। दिस पर्सन पुट मैरिज इन द सेंटर, राइट, मैरिज इन द सेंटर। और इसने कहा कि मैरिज इन द सेंटर में अक्सर में मैरिज क्या है, बिटवीन ग्रुप्स, राइट। और इसमें इसने कहा कि एक वर्ड हमने डिसीजन थ्योरी में कहा जिसका नाम लिया था incest. In decision theory, incest is totally negative in sense that you cannot marry to your direct relative. इसने कहा बिल्कुल ठीक बात है, बट डिसीजन थ्योरी को इतना सिग्निफिकेंस नहीं देती। वो कहता टू whom to marry, ये कहता नहीं। In each and every society, this is the cornerstone of society. This is the cornerstone of the society. None of the society of the world allow to marry direct relatives, मीन्स सगे भाई बहनों को, या फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, कहीं भी नहीं है। रेयर द रेयर कहीं कुछ होगा, बट फाइनली इट्स एन इंसेस्ट, राइट। एंड दैट इंसेस्ट डिवाइड द होल सिस्टम इनटू टू पार्ट्स, टू मैरी, नॉट टू मैरी। बाइनरी पोजीशन है। अब इस बाइनरी पोजीशन को अगर मैरिज के फॉर्म में देखें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आता है कि आई विल नॉट मैरी टू माई सिस्टर, आई विल अलाउ यू टू मैरी माई सिस्टर, आई विल मैरी योर सिस्टर। सो हियर वी शुड सी दिस मैरिज इन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। और हमने पहले क्या कहा है, तीनों रूल में से क्या कहता है, एक्सचेंज सिस्टम्स आर देयर टू मेंटेन सोशल रिलेशंस and reciprocity. So this is a kind of reciprocity, give and take. So to this, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक कौन होता है, ये लो, और इंसेस्ट मेजर रोल कर रहा है। और इंसेस्ट क्या कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी माई सिस्टर बट यू विल मैरी माई सिस्टर, आई विल मैरी योर सिस्टर। इंसेस्ट किसी भी किनशिप के सेंटर में है जो वी और दे में फर्क पैदा करता है। क्या फर्क पैदा कर रहा है, वी एंड किन्स एंड यस, दिस इज द इंसेस्ट सिस्टम। यही चीज टेलीफॉर्म एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ किनशिप क्या, यही तो है, एक्सचेंज ऑफ वुमन। मैरिज वॉज द बेस्ट, और जिनमें मैरिज हो रही है वो नॉन किन्स है, और जिनमें नहीं हो रही वो किन्स है। So kins and non-kins, and marriage is the center of kinship, where incest is the cornerstone of the society. To whom you are not going to marry, those will be the kins, and thus created exogamy. Right? Clear बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये कहता है। एक्सचेंज ऑफ वुमन रेसिप्रोसिटी है, और ये रेसिप्रोसिटी में किस तरह रेसिप्रोसिटी है, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी है। One group is wife, एक का second wife, and this theory is called as alliance theory, just contra to descent theory. ये थ्योरी कौन सी है, alliance. That marriage should be seen as an alliance between two groups, right? And this alliance is based on exchange of women, where we have two group, wife takers and wife givers, and these are kins and non-kins. Binary position again. So this was the elementary form of kinship, where kinship was based upon the marriage, incest. So incest was the cornerstone of society. On the incest, there were two groups, kins and non-kins. And what happens? Two groups, wife takers, wife givers, exchange of women, society. So we should see society in terms of reciprocity, relations, and these relations are maintained through exchange of women by marriage.
So here the whole society is based upon reciprocity. और ये रूल क्या है? इंसेस्ट. पीपल फॉलो रूल्स. व्हाट इज रूल? इंसेस्ट. रेसिप्रोसिटी नहीं करना, प्रतिषेध है, नहीं करना. इंसेस्ट टैबू. इंसेस्ट मतलब टैबू. इंसेस्ट टैबू मतलब बहुत बहुत प्रतिषेधात्मक है, नहीं कर सकते. तो उसने कहा था ये यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड. हम साइकिक यूनिटी की बात कैसे कर रहे हैं? इसने ये तो कहा था कि साइकिक यूनिटी मींस इंसेस्ट इज एवरीवेयर. किस फॉर्म में? नॉट मैरी टू योर डायरेक्ट रिलेटिव्स. ये आपको हर सोसाइटी मिल जाए. तो ये यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड बताता है, चाहे सोसाइटी अफ्रीका की हो चाहे इंडिया की हो. और इसका मैक्सिमम वर्क रहा है अमेरिका में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. मेनली ब्राजील में रहा, राइट. तो वहीं पे जैसे मैंने बताया, इसकी जो मेन जो ट्राइब्स थी उसका नाम था जहां पर ये एक्सचेंज हमने देखा है डायरेक्टली. हाँ, बोरोरो, अरांडी एंड बुगांडी. इन पे इसने काफी काम किया है. ठीक है, बोरोरो, अरांडी एंड बुगांडी. टोटेमिज्म का जितना काम करेगा ना उस पे करेगा. बोरोरो, अरांडी एंड बुगांडी पे जो टोटेमिज्म देखा है, जो मिथ देखा है, इसने मिथ का सारा काम किया ना. तो इसकी पहली बुक हमने कौन सी पढ़ी? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ किनशिप, राइट. इसकी पहली बुक है. दूसरा इसका वर्क कहां पे जाता है? दूसरा इसका बड़ा वर्क आया था, दैट इज ऑन टोटेमिज्म. टोटेमिज्म दरखाम क्या बोलता है? Durkheims and other people, they had a Durkheim, Malinowski, Radcliffe Brown, ये लोग क्या कर रहे हैं? टोटेमिज्म का एक फंक्शनल अप्रोच है. सॉलिडेरिटी, मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, फुलफिल यूटिलिटेरियन थ्योरी बाय टोटेमिज्म. किसने कहा? मेलिनोस्की. कहते हैं यूटिलिटी है टोटेमिज्म की. राइट. टोटम क्या करता है? कंबाइन करता है, नीड पूरी करता है, राइट. लोगों की आइडेंटिटी बताता है. तो उसने देखा फुलफिल नीड के बारे में यूटिलिटेरियन के रूप में. ब्राउन कहता है स्ट्रक्चर के बारे में, और दरखाम क्या कहता है? सॉलिडेरिटी. टोटेमिज्म इज देयर. सो ऑल द रिचुअल्स which are performed, right, for the totemism, they are there to maintain solidarity of the society. Radcliffe Brown क्या बोलता है? स्ट्रक्चर, मेंटेनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, या जो उसका वर्ड था कौन सा? यस, नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस. वो ये बात करता है. दरखाम क्या कहता है? यूटिलिटी. टोटेमिज्म हैज अ यूटिलिटी. गुड टू ईट, गुड टू ईट फूड. इसलिए टोटेमिज्म ये तीनों के खिलाफ है. ये कहता है फंक्शनलिज्म का अप्रोच मत लो. कुछ टोटेम ऐसे जिसको खा ही नहीं सकते, जैसे लेपर्ड है, राइट. ये लोग ये कह रहे हैं, कहां रहता है तू? मैं तेरे को बार बार ये कह रहा हूं, फंक्शनल अप्रोच का मतलब होता है यूटिलिटी. तू पहले बता एग्जिस्टिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है? रेडक्लिफ ब्राउन के साथ है. नहीं, रेडक्लिफ ब्राउन क्या बोलता है? सॉलिडेरिटी नहीं. क्या बोलता है वो? सॉलिडेरिटी की तरह यूज क्या, कौन सा वर्ड लेके आता है वो? हाँ, नेसेसरी, राइट. तो अगर दुर्खिम के हिसाब से देखें तो टोटेमिज्म क्या है? सॉलिडेरिटी के लिए उसका फंक्शन क्या है? सॉलिडेरिटी. रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहता है? एग्जिस्टेंस, राइट. मेलिनोस्की क्या कहता है? यूटिलिटी, नीड. ये कहते तीनों गलत है. आप इसको फंक्शन फॉर्म में क्यों ले रहे हो टोटेमिज्म को? टोटेमिज्म इज क्लासिफिकेशन. क्या है? क्लासिफिकेशन. इट इज जस्ट द क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल, ऑफ सोसाइटी. इसका किसी खाने पीने से लेन देना नहीं है. बिकॉज कुछ ऐसे जो इमेजिनेटरी है, कुछ क्रोकोडाइल है, कुछ बोर है, कुछ ओल है, कुछ फाल्कन है, जिनमें दिखाया तुमने उल्लू और कौवों को. नहीं, उसने कहा दीज आर good to think, not good to eat. लेवी स्ट्रॉस कहता है. लेवी कहता है टोटेमिज्म को आपको किस फंक्शनल अप्रोच में नहीं देखना है. आप ही देखो कि टोटेमिज्म क्या है. आप देखो, उसने कहा दो चीजें हैं. एक क्या है?
नेचर में कौन है? कौन है? एनिमल है, प्लांट्स है। कल्चर में कौन है? ग्रुप्स है, सोसाइटी ग्रुप्स है, क्लान्स है, इंडिविजुअल्स है, राइट। इसने कहा आप इसको इस बाइनरी पोजीशन में देखो। अगेन बाइनरी नेचर एंड कल्चर, टू बाइनरी अपोजिशन, वन बाय क्रिएटर, सेकंड बाय वी। दो अपोजिशन है, एक को भगवान ने बनाया, एक को हमने बनाया। कल्चर आर, नेचर गॉड। तो उसने कहा कि एक्चुअली ये दोनों का रिलेशनशिप, जिसमें कल्चर ने नेचर के हिसाब से अपने आप को क्लासिफाई किया है। एक सोसाइटी में अलग अलग लोग कैसे कैटेगराइज होंगे? इसके थ्रू। क्या आपने अपने को किसी एनिमल से मान लिया, किसी ने अपने को प्लांट से मान लिया, तो दिस इज अ जनरल क्लासिफिकेशन। इट शोज दैट मैन रिलेटेड टू द नेचर। मैन ने अपने आप को किसका रिलेट किया है? नेचर के साथ। सो इट्स जस्ट अ नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। अब वो टोटम कैसा हो सकता है? फूड टोटम भी हो सकता है, एनिमल टोटम भी हो सकता है, सेक्सुअल टोटम भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में टोटम हो सकता है। उसने कहा टोटम एक्चुअली एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है एंड इट शोज द डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड टू बाइनरी, राइट। इसने कहा अपोजिट की सिमिलैरिटी है, दो अपोजिट की सिमिलैरिटी है टोटमिज्म। आप एक टोटम में दो अपोजिट का सिमिलैरिटी देखोगे, देखोगे ना? कैसे देखो? सिमिलैरिटी ऑफ अपोजिशन कैसे देखोगे? That a group of men is recognized by an animal. A group of men is recognized by an animal, but it is not animal. है ना? आप कहते हो जी मैं मंकी का वंशज हूं, एक ने कहा नहीं साहब हम तो बुल के वंशज हैं, एक ने कहा नहीं हम तो हॉर्स के वंशज हैं। क्या आप हॉर्स हैं? नहीं है। But in this way you associate yourself to the nature, and nature is opposite to the culture. So now two opposite are in similarity, right? तो टोटेमिज्म टू अपोजिट का सिमिलैरिटी है। हर चीज टू अपोजिट का सिमिलैरिटी है। दो अपोजिट का सिमिलैरिटी मैरिज है, नहीं है क्या? किनसेन, राइट। तो ये कहता है कि हम जब भी कोई चीज पढ़े ना, अपोजिट की सिमिलैरिटी के फॉर्म में पढ़ो। आपको अर्थ कैसे नजर आएगा? सिमिलैरिटी ऑफ अपोजिट। माइंड भी सही है, दो अपोजिट को सिमिलर करके पढ़ता है। रामायण में राम भी करेगा तो रावण भी करेगा, और रावण पर राम का रावण पर जो वध है उसको नए रूप में दिखाया गया। सत्य क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत, ये सत्य है। सो कैसे करूं? दो अपोजिट से सो करो। किसे सो करो? सिमिलैरिटी ऑफ टू अपोजिट्स। करिया, तुमने कर दिया, तुम्हारी मिथ पूरी वही करती है ना। दिस इज कॉल्ड द मोरालिटी। तो ये बोलता है कि किसी भी चीज के पीछे थॉट इंपॉर्टेंट, नॉट द स्ट्रक्चर। थॉट इज इंपॉर्टेंट। ब्राउन कहता नहीं स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, पेनलॉस कहता नहीं फंक्शन इंपॉर्टेंट है, नीड इंपॉर्टेंट है, राइट। इवोल्यूशन कहता नहीं इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर कहता नहीं हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। सिंबॉलिक कहता नहीं सिंबल पढ़ो, सिंबल का मीनिंग इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन कहता है नहीं आप डिफ्यूजन देखो, वो हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरी को बिल्कुल डिस्कार्ड करता है। नथिंग इज हिस्ट्री, नथिंग इज हिस्ट्री। मेन चीज क्या है? थॉट है। एंड इन ह्यूमन थॉट देयर इज नथिंग लाइक हिस्ट्री। कोई प्रिमिटिव नहीं है, कोई एंशिएंट नहीं है, कोई मॉडर्न नहीं है। लेवी-स्ट्रॉस written a book, The Savage Minds. In that book, he totally explained that the primitive people were as intellectual as we are. Right? Totemism is not a new concept, na. This concept actually was a classification of different societies, different people. ताकि वो एक साफ पता लग जाए हम वी है के दे है। जनरल क्लासिफिकेशन है उनका। एक नेचर एक कल्चर है, दो चीज बोले क्या था? वो कहता है नेचर में क्या होता है? नेचर में एक कैटेगरी होती है, एक पर्टिकुलर होता है। नेचर में दो चीज होती है, एक कौन है? में कैटेगरी होती है कैटेगराइजेशन, एनिमल है कि प्लांट है, या एक पर्टिकुलर एनिमल है, एक पर्टिकुलर प्लांट है। हमारे यहाँ कौन होता है? एक कौन होता है? ग्रुप है। एक पर्सनल है या इंडिविजुअल है।
दो ही चीजें हैं ना, जरा 4 कॉम्बिनेशन बना लो। भाई कैटेगरी में कौन है, इधर एनिमल, प्लांट, फ्लोरा, फौना। अब उसमें तुम कौन से पर्टिकुलर, तुमको जी मैं बीट हूं, मैं मेज हूं, मैं कॉटन हूं, वो कहेगा जी मैं टाइगर हूं, मैं लॉयन हूं, मैं ये हूं। कैटेगरी पर्टिकुलर, यहाँ पे ग्रुप एंड पर्सनल। अब इनके हम 4 कैटेगरी बना तो कौन कौन सी बनेगी, 1 2 3 4। तो पहली कैटेगरी कौन सी होती है, फर्स्ट कैटेगरी एंड, जिसमें किसी एक ग्रुप ने एक कैटेगरी को अपना टोटम मान लिया, भी बिलोंग टू नो पर्टिकुलर आवर होल प्लांट किंगडम हमें। दिस इज ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स, जिन्होंने पूरे ग्रुप को एक पर्टिकुलर कैटेगरी से जोड़ा है। उसमें वो सब अपने आप को एक पर्टिकुलर। दूसरा कौन सा है, जिसमें ग्रुप ने अपने आप को किसी पर्टिकुलर एनिमल से जोड़ा, कहीं भी जोड़ लो, बुगैंडी जैसे क्रोकोडाइल को जोड़ते हैं, बुगैंडी बुगैंडी क्रोकोडाइल, बहुत सा। तीसरा सिस्टम हो सकता है, कौन सा हो सकता है, पर्सनल अपने आप को, राइट। जैसे ओरांडी पीपल कहते हैं कि लेडी ने रात को अपनी प्रेगनेंसी के हिसाब से जो पहला पौधा खाया होगा ना, मेरे बेटे का वही टोटेम होगा। पौधा खाया होगा, एनिमल खाया होगा, वो मेरे बेटे की कैटेगरी होगी। मान लो आपकी प्रेगनेंसी आई, और प्रेगनेंसी में जो आप, जब आपको पता लगा उससे पहले आपने जो खाया, उसके हिसाब से पर्टिकुलरली आपका बेटा वैसा होगा, वो उस टोटेम का होगा। हाँ, वो पर्टिकुलर के लिए होगा, किसके लिए होगा, पर्सनल के लिए। तो वहां पे पर्सनल टोटेम है, राइट। और चौथा ग्रुप कौन सा हो गया, पर्टिकुलर टू, किसी पर्सन ने किसी पर्टिकुलर से ग्रुप को जोड़ लिया। सो दीज 4 कैटेगरीज आती हैं, और वो ऑब्जेक्ट तुमको मिलेगी। उसने कहा कि इट्स ए क्लासिफिकेशन, इफ वी सी इन दिस वे, दिस शो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी in terms of group as well as personal, and second it is an interrelation between nature and culture. So it is not about eating or something utilitarian, no, it is good to think. हाँ चलते। अब प्रिमिटिव सोसाइटीज में बहुत है, जिसको हम सिंपल सोसाइटी बोलते हैं, प्रिमिटिव वर्ड से बहुत घृणा करता था। पर आप गाय को, टोटेम के सिस्टम अलग बहुत है, सबके लिए गाय एक है। तो मेरे हिसाब से हम कैटेगरी ग्रुप वाले नियम वाले लोग हैं। हम कौन से हैं, पर्टिकुलर टू टोटल हिंदू सोसाइटी। मैं सिंपल कह रहा हूं, अगर हम इस रूप में देखें तो मुझे लगता है हमारा ये सिस्टम होना चाहिए, राइट। होल हिंदू ग्रुप सोसाइटी, हिंदू ग्रुप, होल हिंदू सोसाइटी बिलीव ऑन ए पर्टिकुलर एनिमल एंड दिस इज काउ। इवोल्यूशन की बात तो करता ही नहीं है अपना, ये स्ट्रक्चर तो करता ही नहीं है, तो मान्यता ही नहीं है, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का मतलब नहीं है। ये कितना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखा रहा है, प्रेजेंट देखो, थॉट देखो, किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन थॉट के। हाँ, उनका अपना थॉट है, उनका अपना थॉट है। वो कहते सब सेवेजेस थे, सब बारबेरियन थे, सब सिविलाइजेशन थे, बात की सबसे पहले मैजिक था, रिलीजन था, फिर साइंस था, बात रिलीजन होना ही, सब जगह साइंस होना चाहिए, राइट, बट है नहीं ना, राइट, है नहीं ना। और बात फंक्शनल अप्रोच की हम लोग कर रहे हैं, सिंपल बात करता हूं मैं तुमको। रिलीजन हैज ए फंक्शनल अप्रोच, इट इज फॉर दो सोसाइटी वेयर सिंगल रिलीजन, बट दो हैव रिलीजन, देन क्या करोगे? मां तुम्हारा फंक्शनल अप्रोच क्या कहता है कि तुम हिंदू में मुसलमान क्यों, तू ईसाई तो मैं वो क्यों? नीड तो सबकी एक थी, रिलीजन तो एक ही है, अब लगने का अपना क्यों रहे? ये क्या कहता है? Mental structure. According to mental structure, according that we have culture. जो जस का mental structure, तो ये पर्टिकुलर की बात करता है। किसकी बात करता है? पर्टिकुलर की। ग्रुप की बात नहीं करता, पर्टिकुलर की बात करता है।
इसी आधार पर ये फंक्शनल से अलग है। फंक्शनल अप्रोच क्या कहता है? ग्रुप। ये किसकी बात करता है? सबका एक जैसा सोचता है, इसी वजह से हम लोग तुम्हें बाइनरी पोजीशन एक जैसे नजर आए, राइट? इस आधार पे तो ये टोटलिज्म हुआ, किनशिप हुआ, और उसके बाद मिथ। तीसरी बात ये कहता है, उसके लिए उसने एक बुक निकाली थी, mythologic series, a book on myths. हाँ, mythologic series on myth. He was a great convener of myths. उसने कहा myth very strong. Myth is the echo. Myth is the echo of a society. They are very much relevant to the society, right? Because myth is totally thought, mind based. मिथ को मानता था स्ट्रॉन्ग, बाकी तो कहते हैं मिथ मिथ है, ये कहता नो, मिथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मिथ का मतलब हो गया लाइक यू बिलीव इन योर थॉट, योर इमेजिनेशंस, एंड दैट गिव्स अ थॉट, अ यूनिटी टू अ सोसाइटी। तो मिथ को ये बहुत कोर मानता था, बहुत कंक्रीट मानता था, और मानता था मिथ जो है वो किसी भी सोसाइटी का मेन मैनिफेस्टो है कि वो सोचते कैसे। जैसे मैंने बताया कि मिथ गिव्स फ्रीडम टू लेवी-स्ट्रॉस, myth gives freedom to a person to think beyond the societal imagination, beyond the human imagination. Human क्या यहां से वहां तक कूद सकता है, उसके मिथ में तो वो कहीं भी कूद सकता है। सुपरमैन, हनुमान जी, हमारे कृष्ण भगवान, राम जी, अगर हम बात करें, अगर हम जीसस की बात करें, ये लोग बियॉन्ड द ह्यूमन थे। अगर हम पैगंबर साहब, बियॉन्ड द ह्यूमन थॉट। सो मिथ प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द माइंड टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स। सो इन दिस टर्म मिथ जो है वो किसी भी आदमी के इमेजिनेशन का टॉप फॉर्म है, जो गलत नहीं हो सकता। मिथ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी ह्यूमन के लिए, क्योंकि ये सब इमेजिनेशन की बात करता है, थॉट की बात करता है, स्ट्रक्चर की बात करता है। क्योंकि फिलोसोफर है कौन? मेटाफिजिकल, टू दिस वर्ड टू दैट वर्ड, दोनों को जोड़ता है। क्रिएटर ने नेचर बनाया, नेचर के पार्ट, तुम्हारा एक मेंटल स्ट्रक्चर हुआ, उसे सोशल स्ट्रक्चर बना, उसे कल्चर बनी, तुमने बनाई कल्चर, उसने बनाई नेचर, दो चीज हो गई। एंड ह्यूमन ऑलवेज रिलेशन बिटवीन नेचर एंड कल्चर, क्लासेस भी होता है, रिलेशन भी है। आप नेचर के लिए अच्छे भी है, बुरे भी है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेचर को, नेचर के साथ भी रहे अच्छे हैं, तो आपका एक अपोजिशन हुआ ना उनके साथ, अच्छा भी है और बुरा भी है। सो मिथ के बाद में इसकी अगली बुक थी Savage Mind. In this, he discarded the concept of primitive man. He discarded the concept of primitive man. There was no primitive, it was always an intellectual man. Right? He replaced or substituted primitive to intellectual. So savage people were as intellectual as the modern one. Right? So they thought about totemism, classified people, they formed a structure of society, they formed a culture. How could they be savage? क्या कल्चर मॉडर्न है? क्या सोसाइटी मॉडर्न है? नहीं। तो टू लेवी-स्ट्रॉस ह्यूमंस किसकी बात करता है? ही ऑलवेज टॉक अबाउट, किसकी बात करता है? ऑफ माइंड, यूनिवर्सल ह्यूमन का बात करता है। उसकी बात में हमेशा तुमको एक बात मिलेगी, प्रिमिटिव मैन्स। उसको इस वर्ड से बहुत घृणा थी। व्हाट इज प्रिमिटिव? दे पीपल वर मोर इंटेलेक्चुअल, मोर तो नहीं कहूंगा, एज इंटेलेक्चुअल एज द मॉडर्न वन। You are living in your own environment, they were living their own nature. उन्होंने उस समय उन चीजों को यूटिलाइज किया, तुम आज यूटिलाइज कर रहे हो, तो तुमसे इंटेलेक्चुअल नहीं थे। So their civilized mind gave complete scientific study
the primitive man. Right? And finally, what concluded that primitive man was nothing. They were intellectuals as the modern. क्योंकि वो यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड था, यूनिवर्सल ह्यूमन थॉट था, जिससे उन्होंने पूरा सोशल स्ट्रक्चर बनाया. सो चिप हो गया. चिप में उसने एक बात और बेंच उसने एक एग्जांपल और दिया था. इन दैट एग्जांपल वी डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो अबाउट द वी एंड दैट. सो उस जमाने में बिटवीन 1950 to 80 हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, क्योंकि इनके हिसाब से सब कुछ. और सबसे पहला काम हमने किस में किया? सबसे पहला काम किस चीज में था? एक और, दैट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज इज अबाउट साइन, राइट? एंड वी पीपल आर जनरल बेस ऑफ साउंड्स. वी क्रिएट डिफरेंट साउंड्स ऑन द बेसिस लैंग्वेज. लैंग्वेज की चीज है. तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली मेंटल. मेंटल स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू साइन स्ट्रक्चर. मेंटल किसमें कन्वर्ट हुआ? साइन में. तो वो कौन बनी? लैंग्वेज. किनशिप क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर इनटू सोशल स्ट्रक्चर. और कैसे बनी? किन्स एंड नॉन किन्स, बाइनरी अपोजिशन. इसका बेस बनाना अकॉर्डिंग टू लेवी-स्ट्रॉस, सोसाइटी social structure is the manifestation of the mental structure. Social structure is the manifestation of mental structure. He believed in the psychic unity and universal human mind, universal human thought. Please, second, third. According to Levi-Strauss, mind always behaves and thinks in binary opposition. And that can be seen all over the universe, as in terms of good and bad, nature and culture, we and they. And this is the phenomena of the whole system. And the spiritual system is based on three things. People follow rule. Reciprocity is the simplest way to create social relations. Gifts exchange mentally, social relations. Then the work, right? Contribution of Levi-Strauss. First, kinship. In kinship, he written a book, Elementary Form of Kinship, in which he stressed upon the alliance theory. Before that, descent theory was in dominance to study the kinship theory, where descent or lineage was a corporate group, transmission hota tha, and where marriage was secondary. To Levi-Strauss, marriage is prominent in the kinship. First. Second, उसने क्या बोला? Incest rule is the cornerstone of society. Incest means how to marry to direct relationship, and that is prevalent to all the societies of the world, right? But to marry other one. So to Levi-Strauss, marriage is an alliance between groups which results in form of exchange of women, where we have two groups, wife takers and wife givers. And that meant the relation between society, between kins and non-kins. Right? And this exchange is terms of reciprocity. Right? And this is the basis of society. Clear? Here again, he recognized the binary opposition in terms of kins and non-kins, in terms of we and they. And he led an example of boiled and roasted food in French, where boiled food are for the non-kins and roasted food for the kins. This is about the kinship theory, where he discarded the functionalist approach. Right? So ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि भाई डिसेंट है, फंक्शन है. भाई किनशिप क्या है? एक फंक्शन है. किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए, उसके लिए. उसको ये फंक्शन नहीं है. ये मैरिज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें किन्स और नॉन किन्स अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ इंसेस्ट. राइट? और इंसेस्ट में क्या होता है? मैरिज में दो अलग अलग ग्रुप होता है, गिवर्स एंड टेकर्स. तो मैरिज को सिर्फ प्रोक्रिएशन नहीं है, सेंटर में है, उसमें इंसेस्ट है, और इंसेस्ट की वजह से दो ग्रुप बने हैं. क्लियर? ये इसका. उसके बाद उसने सेकंड बात किसका किया? किनशिप हो गया, मैरिज हो गया. अब वो बात करता है मिथ की. राइट? और मिथ पे बुक लिखता कौन सी? माइथोलॉजिक सीरीज. So to him, myth is very important character of society. Myth provides unlimited freedom to human mind to think beyond the
societal imagination or societal limit, right? They are very relevant, very crucial to maintain the society. तीसरा बात वो किसकी करता है इसके बाद में? टोटेमिज्म, very important. To him, totemism, he always discarded the functionalist approach of totemism that started with Durkheim. Durkheim ने कहा it is, so what is the contribution of totemism? Maintain the solidarity. Rightly Brown, maintaining the structure. Malinowski, utilitarian approach, he discarded everything. To him, totemism is not good to eat something, it's just good to think. Totemism actually provides natural classification and an interrelation between nature and culture, two binary opposition where nature, animal, plant, culture, group and individuals. Clear? And totems are just a classification of people which classifies, not a functionalist approach. Totem इसी ने कहा था लेवी-स्ट्रॉस ने कि totem word is derived from the Ojibwa tribe. Brothers sisters के हमने पढ़ा था ना, वो बात करता है Ojibwa ट्राइब से लिया गया वर्ड. Not good, it's not good to eat, it's good to think. तो उसके हिसाब से बताए थे. और बात करता है कि he totally believed in observation, mathematical statistical calculations and generalization. He always discarded monograms. Rather, he believed in the theory of universal human thought, universal human mind, psychic unity. तो ये यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहा है. ये किसकी बात नहीं कर रहा, ये इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहा. इट इज जस्ट अगेंस्ट द इंडिविजुअलिटी, इट इज जस्ट अबाउट द यूनिवर्सलिटी कि कोई चीज सब जगह एक जैसी है. अगर बाइनरी पोजीशन सब जगह है, जूते लेकर कहीं भी नहीं जा सकते, राइट? अपने डाइनिंग टेबल पे जूते नहीं रख सकते. सेक्रेट से प्रोफेनो वहीं पे आएगा. गुड बैड डार्क वो सब चीजें बाइनरी है क्योंकि माइंड बाइनरी. और एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था 4 0 1 करके देख लो, इसमें 4 करके देख लो. उसने कहा मैथमेटिकल परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस है. राइट? देन वर्क इन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज, मिथ, टोटेमिज्म, किनशिप, मैरिज, हर जगह बैठे. एंड व्हाट इज सोसाइटी? अब बात करें सोसाइटी इज व्हाट इज? सोसाइटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर. Here he tried to connect creation with the creator, metaphysical. So God created the nature. उससे निकला ह्यूमन का मेंटल स्ट्रक्चर. उस मेंटल से क्या बना? सोशल स्ट्रक्चर. सोशल स्ट्रक्चर क्या बना? कल्चर. सो कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर नथिंग बट दी थॉट. तो उसने थॉट कैसा होता है? बाइनरी. तो हर चीज तुमको दो दिखाई देगी. एक जीरो दूसरा डार्क है तो लाइट है, हीट है तो कोल्ड है, बी है तो दे है. राइट? सो दिस वाज द लेवी-स्ट्रॉस. राइट? ये लेवी-स्ट्रॉस था. लेवी-स्ट्रॉस ने एक चीज डिस्कवर किया, दैट इज हिस्ट्री. ही डिडंट बिलीव इन हिस्टोरिकल डाटा. हिस्ट्री क्या है, वो कहां रहता है उसके हिसाब से. ये सोसाइटी थोड़ी है. सोसाइटी तो थॉट है एंड थॉट यूनिवर्सल है. प्रिमिटिव माइंड इज नॉट एक्सक्लूसिव फ्रॉम द मॉडर्न माइंड as intellectual. So what about the historical records? Nothing. Right? अब इसके बाद आता है एडमंड लीच. लीच ने क्या किया? लीच का सबसे बड़ा काम था जो हाईलैंड ऑफ बर्मा है, द पॉलिटी ऑफ हाईलैंड्स ऑफ बर्मा. उसने बड़ी अच्छी बुक लिखी थी. लीच ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज ए मिलिट्री मैन अपना टाइम निकाला था ताइवान, बर्मा और श्रीलंका, 3 जगह पर. श्रीलंका को समय सिलोन कहते थे, सिलोन. तो ही वॉज इन ताइवान, ही वॉज इन म्यांमार एंड ही वॉज इन श्रीलंका. तो इसने सारा काम वहां पे किया और इसने शुरुआत की स्ट्रक्चरलिज्म से. वही ह्यूमन मैन पर्सन. उसने बर्मा के अंदर जो हाईलैंड बर्मा है जिसमें एक ट्राइब है, कौन ट्राइब है? कचिन. सो फर्स्ट लीच वर्क ऑन कहां पर है ये? उस समय इसको क्या कहते थे? और इसमें इसने इसकी पॉलिटी पे काम किया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे. पॉलिटी. राइट? दूसरा काम इसने किया सिलोन में. किसमें काम किया? सिलोन में, श्रीलंका में. तो एडमंड लीच का जो पहला काम रहा वो रहा था किस पे? इट वर्क ऑन कचिन ट्राइब. सबसे ज्यादा काम इसका इस पे ये कहा गया था.
और इसमें इसने पूरा बताया कि कैसे कचिन ट्राइब के पीपल है वो अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे मेंटेन कर रहे हैं थ्रू देयर इंटरप्रिटेशन, थ्रू देयर मेंटालिटी। बट इसने वहां पे काम करते करते ये समझा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेंटल थॉट ही जरूरी नहीं है। एम्पिरिसिज्म क्या होता है? एक्सपीरियंस। एक फिलोसॉफी में एक क्लास है कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। देखो आप पढ़ोगे रेशनलिज्म, ठीक है, निहिलिज्म, एम्पिरिसिज्म, एस्टोक्यूसिज्म, राइट? दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोसॉफीज। फिर आपने पढ़ा है अपना सांख्य, जो अपने इंडियन फिलोसॉफी अलग है, ये वेस्टर्न फिलोसॉफीज है। एम्पिरिसिज्म कहता है कि whatever you have, whatever knowledge you have, that comes from your experiences. That comes from your experiences. Right? Rationalism कहता है कि logics. Knowledge is all about your logic, not your experiences. Logic. तो rationalism logic की बात है, right? Empiricism experiences की बात करता है। तो इसने देखा knowledge is about experiences, not about the human mind or thought. और एक्सपीरियंस के लिए तुम्हें ह्यूमन हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, राइट? हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, और एक ग्रेट एक्सपीरियंस चाहिए टू लेट देयर। तो दैट पर्सन वर्कड एज ए पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन वाज नेवर बाय द लेवी-स्ट्रॉस। लेवी-स्ट्रॉस की तो बीबी बीमार पड़ती है, एक्सपेक्टेड होती है, इतना डिग्री होती है, उसकी जगह वो जाता है, बीबी का एक्सीडेंट हो जाता है, पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है, तो बीबी कहती है मेरा बच्चा हुआ काम कराओ ना ब्राजील के अंदर, तो जाके करता है, तब पहली बार सोचता अच्छा इतना मजा आता काम करने में, लेट्स स्टार्ट, राइट? वरना वो कभी स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं बनता। Rationalism is all about लॉजिक। तुम्हारा लॉजिक कितना पावरफुल है, तो इस लॉजिक के लिए जरूरी नहीं कि तुमको अनुभव बहुत ज्यादा हो, इसलिए तुम्हारा लॉजिक शुरू से बहुत पावरफुल। सम पीपल आर वेरी लॉजिक, कुछ को अनुभव चाहिए। तो अगर नॉलेज कहां से आता है? अगर नॉलेज कम्स फ्रॉम लॉजिक, ये कहता नो नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये इंपीरियलिज्म पे बिलीव करना स्टार्ट किया, एंड ही एडेड इंपीरियलिज्म इन द स्ट्रक्चरलिज्म। और ये कहता कि नहीं, with the thought and structure we should need historical data also, right? And most of all experiences, observation, participation। और यहां पर जाकर ये अलग हो जाता है स्ट्रक्चरलिज्म से, राइट? और एक नया वर्ड लेके आता है नियो स्ट्रक्चरलिज्म, which was based on empiricism and observation, empiricism and observation। इसने काम किया आपके हाईलैंड ऑफ बर्मास पे, हाईलैंड ऑफ बर्मा, राइट? अ पॉलिटिकल स्टडी इन द हाईलैंड्स ऑफ बर्मास। दूसरा सिलोन पे काम करता है बंदा, ताइवान में काम कर रहा है, नहीं सिलोन श्रीलंका कर रहा है, श्रीलंका सिलोन है। तो लीच का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा? एम्पिरिसिज्म एंड ऑब्जर्वेशन यूजिंग कंप्लीट एक्सपीरियंसेस। तो पहले तो स्ट्रक्चरलिज्म के साथ में था, राइट? बाद में आफ्टर 1970 ये इसका बिकम क्रिटिकल हो गया। क्रिटिक, आलोचक सबसे बड़ा स्ट्रक्चरलिज्म का। क्रिटिसिज्म हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, डेटा नहीं है, एम्पिरिसिज्म नहीं है, खाली मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, ये वो लेकर आ गया because he was there to use that method in the particular society for 3 to 4 years. He was there only between Second World War, got a lot of experiences, right? So with empiricism thought means with experiences, structuralism plus data, एक नई चीज लेकर इसको बोलता है नियो स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको एडमंड लीच लेकर आया। तो लीच का कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में? एम्पिरिसिज्म मींस एक्सपीरियंसेस प्लस ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटिव। तो इसने स्ट्रक्चरलिज्म को थोड़ा चेंज किया, हिस्टोरिकल डेटा इनपुट किया, ऑब्जर्वेशन इनपुट किया। काउंट करेंगे, पहले स्ट्रक्चरलिज्म के फॉर्म में किया था ना इसने उसको मेंटल फिक्स के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में देखा। बाद में कि वहां पे अनुभव कर चुका था, तो इसने बाद में क्रिटिक हो गया, हमने एक नई शाखा बना दी नियो स्ट्रक्चरलिज्म। It was Edmund Leach and Levi-Strauss। 70।
70 के बाद, 70 के बाद में क्रिटिक शुरू हो गया था। 50 to 80 के बीच में अच्छा चला, बट क्रिटिक इसका 70 के बाद शुरू हो गया था लेवी स्ट्रॉस का, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हिस्टोरिकल डेटा को मानता नहीं था, एम्पिरिसिज्म को मानता नहीं था, ऑब्जर्वेशन का इसके लिए कोई मतलब नहीं था, सब कुछ थॉट, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, ऑब्जर्वेशन। आप इसको एक चीज के बारे में बताओ, ये ऑब्जर्व करेगा, तो ज्यादा पार्टिसिपेटर नहीं, ऑब्जर्वेशन करके बता देगा ये है, क्योंकि सब कुछ ह्यूमन माइंड है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चरलिज्म। पूरा क्वेश्चन भी अगर आए लेवी स्ट्रॉस पे तो तुम खड़ा कर दो, क्लियर। लेवी स्ट्रॉस बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लेवी स्ट्रॉस को पूरा, लेवी स्ट्रॉस है, मेलिनोस्की है, एडक्ली ब्राउन है, ये बड़े क्वेश्चन है। दरखाइम हमें नहीं पूछते, दरखाइम सोशियोलॉजिस्ट है, दरखाइम अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, राइट। हमने पढ़ा टोटेमिज्म पूरा, सॉलिडेरिटी पढ़ा है ना, सोशल फैक्ट्स, तो दरखाइम सबके पापा थे ना। सब शुरू में किसको फॉलो कर रहे हैं? दरखाइम को। ये भी करा है, फंगस भी वहीं से शुरू हुआ, स्टार्टिंग सब वहीं से, प्री सोशल फैक्ट्स, सोशल फैक्ट दरखाइम, क्योंकि पहले वही बंदा था जिस जाकर पहली बार किसी अरुणा ट्राइब में बात कर रही है। सॉलिडेरिटी, कंट्रीब्यूशन, राइट, कंट्रीब्यूशन। पर उसकी एक प्रॉब्लम थी, जो उसने वर्ड यूज किया था कि एवरीथिंग जो टोटेमिज्म है ये बिलीव टू द चर्च है, तो उसने कहा जहां चर्च नहीं, लेवी स्ट्रॉस कहता जहां चर्च नहीं वहां पर क्या है, तो फिर दिन चेंज हुआ। अब सॉलिडिटी से बाहर आकर वो एग्जिस्टेंस की बात करता है, वो फंक्शनलिज्म की बात करता है, ये स्ट्रक्चरलिज्म की बात करता है, मेंटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, अगला आ रहा है एम्पिरिसिज्म की बात कर रहा है। अब इसी के अंदर एक बंदा आया जिसके अंदर क्या जोड़ दिया, एम्पिरिसिज्म, हिस्टोरिकल डेटा, ऑब्जर्वेशन, चीजें ना एक साथ चीजें बदल रही है, क्लियर। और मेंटल स्ट्रक्चर हर जगह यूज कर रहे हैं लोग, कहां नहीं करते बताओ। आज भी कोई स्टडी हम लोग करते हैं तो पहले उसके पीछे का मेंटालिटी देखते हैं, थॉट प्रोसेस देखते हैं, कैसे कैसे हुआ, उसके बाद ही तो आप आगे चीजों को लेते हो। हम कहते हैं कि इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन क्राइम रादर देन इंसिडेंट, राइट। ये कहां से आया? आपने कोई क्राइम किया तो वो पीछे आपका मोटो भी देखेंगे, आपका इंटेंशन भी देखेंगे, तो ये सब चीजें ह्यूमन माइंड से ही तो है। फीमेल साइकोलॉजी कैसे पढ़ सकते हो यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड, राइट, कि क्रिमिनल ऐसा सोचते हैं, तो मतलब कोई ना कोई सिमिलरिटी, एक पैटर्न होगा क्रिमिनल्स का, एक साइकोलॉजी होगी क्रिमिनल्स की, तभी तो आप उसकी साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आपके पास एक बुक है, वरना हर क्रिमिनल अगर अलग तरह से सोचता है तो बुक एक कैसे हुई, राइट। इन अ गिवन एनवायरनमेंट पीपल थिंक्स अलाइक, बात हम करते हैं, इन अ गिवन एनवायरनमेंट पीपल थिंक्स अलाइक, यही बात यहां पर। सो लेवी स्ट्रॉस रादर वो तो फिलोसोफर जो माइंड की बात करता है कि सबसे पहले मेंटल स्ट्रक्चर बनती है। नेपोलियन बोलता था युद्ध पहले यहां जीते जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, फिर यहां पे हम स्टडी पहले यहां पर, उसके बाद यहां बनते हैं, पहले यहां बसता है फिर यहां बसता है, बिजनेस पहले यहां शुरू होता है फिर यहां शुरू होता है, एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक पैटर्न तरीका है उनके दिमाग में एक तरह का विचार गलत का भी पैटर्न होता है, पैटर्न होता है, वो जल्दी करता है, फटाफट करता है, तुरंत निकलता है, छुपता है, भागता है, तो वो सब चीजें सबको पता होता है, आम आदमी ऐसा नहीं है। उनको पकड़ने पीछे उसके एक्टिविटीज को, उसके थॉट क्या है, तो थॉट के साथ पकड़ते हो कहां रहा, ये तो क्रिमिनल साइकोलॉजी है। वो द बिहेवियर ऑफ ए क्रिमिनल, बिहेवियर किससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन माइंड। थॉट एंड बिहेवियर दो ही चीज पे तो बात करते हैं हम, सिंबल पढ़ रहे थे ना पीछे, सिंबलिज्म में किस चीज पे बात कर रहे थे, थॉट एंड, राइट, ये भी वही बात करता है, थॉट एंड बिहेवियर, सिमिलरिटी एंड यस अपोजिट सिमिलरिटी, बाइनरी पोजीशन है, एक जैसा सोचते हैं तो सिमिलरिटी भी है और यस। So this school also talks about the similarity and differences between human thoughts and behavior, right? But in universal human mind, universal human thought, psychic unity, mental structure, इस पे बात करते हैं। तो हर चीज को बाइनरी अपोजिशन, इसको दिमाग में रख लेना, हमें बाइनरी अपोजिशन हर जगह दिखेगा। का मतलब बाइनरी अपोजिशन, you and me, I and they, hot and cold, raw and cooked,
सब कुछ इनका ही। कैनिबलिज्म को सपोर्ट करता है। कैनिबलिज्म क्यों हो रहा है? कि वहां प्रोटीन की कमी है।